Hello everyone, this is Pooja Arora and today I am going to teach you the third chapter of the book Vistas, which is titled as Journey to the End of the Earth. This is written by Tishani Doshi. While we talk about the author Tishani Doshi, as you can also see her photograph on the screen, she is a writer and dancer of Welsh Gujarati origin. Welsh is used for anyone belonging to England. तो इंग्लैंड गुजराती ओरिजिन को वो बिलोंग करती हैं. बेसिकली शी वॉज बॉर्न इन मद्रास इंडिया इन 1975. देयर आफ्टर शी स्टडीड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन एट क्वींस कॉलेज शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना and also gained a master's degree in the writing seminars at Johns Hopkins University, Baltimore. Then she moved to London in the year 1999 and she became assistant to the advertising department of Harper's and Queen's magazine. एक मैगज़ीन में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने असिस्टेंट की जॉब कर ली. Thereafter in 2001 she returned to India where she became a dancer with the choreographer Chandralekha. She also works as a freelance journalist and she contributes her articles, her creations to various newspapers such as The Guardian, The English Herald, The Tribune, The New India Express and The National. She has published 6 books of poetry and fiction. Her essays, poems and short stories have been widely anthologized. She currently lives on a beach between 2 fishing villages in Tamil Nadu with her husband and 3 dogs. The chapter Journey to the End of the Earth, it's a narrative account by the author. Before you read, there is a question. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. Bon voyage. Bon voyage is an expression which is used to signify that you are wishing someone good luck before a journey. तो अगर आपको इस प्लैनेट अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा जानना है, एक्सप्लोर करना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑथर अगर कोई जगह है बेस्ट जाने के लिए तो वो अंटार्कटिका है. और उस जर्नी के लिए शी इज़ विशिंग द रीडर्स गुड लक बाय सेइंग बॉर्न वॉयज. Early this year, I found myself aboard his Russian research vessel, the academic Shokolesky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. Early this year, when this article was written, उस year की beginning में, she found herself aboard a Russian research vessel. Vessel is used for a ship. एक रशियन रिसर्च शिप थी, बहुत बड़ी शिप थी जिसका नाम था एकेडमिक शोकेलेस्की और ये रिसर्च पर्पसेस के लिए अंटार्कटिका की तरफ जा रही थी. उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स को जगह दी गई थी, रिसर्चर्स थे उसमें सारे, एंड तिशानी दोशी वाज आल्सो वन ऑफ देम. She started heading towards the coldest, driest and the windiest continent in the world, that is Antarctica. जर्नी जब शुरू हुई तो उसकी लोकेशन 13.09 डिग्रीज इक्वेटर के नॉर्थ में थी, इन मद्रास. मद्रास इज़ द प्लेस वेयर शी करंटली लिव्स. तमिलनाडु मद्रास में उसकी जर्नी शुरू हुई एंड इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 डिफरेंट टाइम जोन्स, 9 अलग अलग टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज़ और इतने ही लगभग 3 ही इकोस्फेयर्स को क्रॉस करके उसकी जर्नी जब कंप्लीट हुई तो वो अंटार्कटिका तक पहुंची थी. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car, aeroplane and a ship. कार, एरोप्लेन और शिप, 3 अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उसकी जर्नी कंप्लीट हुई. एंड व्हेन शी एक्चुअली सेट हर फुट ऑन द अंटार्कटिका, उस आइस के ऊपर, अंटार्कटिका की बर्फ़ के ऊपर जब उसने पैर रखा तो टोटल में उसे 100 आवर्स की जर्नी हो चुकी थी, मद्रास से अंटार्कटिका तक की जर्नी. तो उसका जो पहला इमोशन था, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ फॉलोड बाय एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. तो जैसे ही अंटार्कटिका में उसने एक्सपेंस को देखा, दूर दूर तक फैली हुई वाइट लैंडस्केप बिकॉज ऑफ द स्नो, बर्फ़ की वजह से पूरे का पूरा लैंडस्केप वाइट था. और ऐसे ही अगर स्काई की तरफ टर्न करो तो
स्काई इज़ ऑल्सो वाइट, लेकिन जहाँ पर होराइजन था, होराइजन इज़ द प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ सीम टू मीट, एक्चुअली मिलते नहीं हैं, लगता है कि मिल रहे हैं, बहुत दूर जहाँ होराइजन दिख रहा था इट वॉज ऑफ ब्लू कलर। तो जब उसने ऐसा नज़ारा देखा अपनी लाइफ में जो पहले कभी नहीं ऑब्जर्व किया था, तो पहला इमोशन जो उसके मन में आया दैट वाज ऑफ रिलीफ। रिलीफ क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थका देने वाली जर्नी कंप्लीट करके आई थी। फॉलोड विद एन इमीजिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इमीजिएट नेक्स्ट जो इमोशन उसके मन में आया दैट वाज ऑफ वंडर, हैरानी। हैरानी क्यों? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कि इतना फैला हुआ इतना बड़ा अंटार्कटिक है। इट्स आइसोलेशन, कैसे ये बाकी की दुनिया से आइसोलेटेड है, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लेकिन ज़्यादा चीज़ जिस पर उसे हैरानी हुई वो ये थी कि कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टाइम ऐसा भी था कि जब इंडिया भी अंटार्कटिका का ही पार्ट था। इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन बट इट्स ट्रू। टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जिस पार्ट की हम अब बात करने जा रहे हैं, जो तिशानी दोषी हमें इंट्रोड्यूस कर रही हैं, दैट बिलोंग्स टू 650 मिलियन ईयर्स अगो। एक बहुत जाइंट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, अमेलगमेटेड, जुड़ा हुआ सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट्स तो हमने सुने हैं, देर आर 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना। इट डिड इंडीड एग्जिस्ट, एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो इसकी लोकेशन थी वो प्रेजेंट डे अंटार्कटिका के आसपास ही थी। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, आज जैसी कंडीशंस नहीं थी। ह्यूमंस तब तक ग्लोबल सीन पर नहीं आए थे 650 मिलियन ईयर्स अगो। क्लाइमेट भी काफ़ी वार्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटी मिलती थी। फॉर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव इज़ टू फ्लरिश। लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना फ्लरिश करता रहा, फलता फूलता रहा। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. लेकिन जो चेंजेस आने शुरू हुए, इट बिगेन अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि 500 मिलियन ईयर्स तक तो गोंडवाना थ्राइव करता रहा। 150 मिलियन ईयर्स पहले उसमें जो चेंजेस आने शुरू हुए, उससे काफ़ी कुछ अर्थ वैसी बनने लगी जैसी हमें आज दिखती है। दिस वॉज द टाइम जब डायनासोर्स इस अर्थ से पूरी तरह वाइप आउट हो गए। मैमल्स की एज सेट हुई, मैमल्स ने इस अर्थ पर एग्जिस्टेंस में आना शुरू किया। लैंड मास जो था ये बहुत बड़ा गोंडवाना लैंड मास, इसमें अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस, टर्ब्यूलेशंस होने लगे कि लैंड सेपरेट होने लगा और अलग अलग कंट्रीज़ फॉर्म होने लगी, और ग्लोब काफ़ी कुछ वैसा बनने लगा जैसा हमें आज दिखता है। व्हेन वी टॉक अबाउट विजिटिंग अंटार्कटिका, अगर आज हम अंटार्कटिका में जाते हैं तो इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, कि हम उस हिस्ट्री में जा रहे हैं विच एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो। क्योंकि अंटार्कटिका की बात की जाए तो इट हैड बीन अ प्लेस जहाँ पर कभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं रही है, और पिछले 150 मिलियन ईयर्स में तो वहाँ पर शायद कोई भी फ्लोरा या फौना का एग्जिस्टेंस नहीं रही है बिकॉज ऑफ द आइस। उससे पहले ये वार्म था कॉन्टिनेंट, और फ्लोरा और फौना की बहुत वैरायटी थी, लेकिन 150 मिलियन ईयर्स पहले उसमें ऐसे चेंजेस आने शुरू हुए जिसकी वजह से वो पूरी अर्थ के साउथ में, अराउंड द साउथ पोल, बिल्कुल आइसोलेटेड सा रह गया। तो अगर अब हम उस अंटार्कटिका में जाते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम अर्थ की उस हिस्ट्री में जा रहे हैं जो 150 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी। To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading, अगर हम अंटार्कटिका में जाते हैं तो इट्स लाइक कि हमें ग्रैस्प, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पास्ट क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ आवर फ्यूचर। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। वहाँ जाकर हम अर्थ की कॉर्डिलरन फोल्ड्स को और प्री कैम्ब्रियन से पहले की जो ग्रेनाइट शील्ड्स थी, प्री कैम्ब्रियन एज की ग्रेनाइट शील्ड्स, उनको हम जान सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। ओजोन और कार्बन लेयर्स को स्टडी किया जा सकता है अर्थ की। इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे एक्सटिंक्शन हुआ। इवोल्यूशन इज़ द बिगिनिंग, एक्सटिंक्शन इज़ द एंड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling.
जब हम पूरे मिलियन ईयर्स में होने वाले चेंजेस को एक साथ देखते हैं तो ये माइंड बॉगलिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग और ट्रबलिंग टू द माइंड। लेकिन इमेजिन करो कि इंडिया इज़ पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। इंडिया अंटार्कटिका के साथ था, लेकिन 150 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ में चेंजेस आने शुरू हुए, ड्यू टू दैट इंडिया स्टार्टेड पुशिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। और जब वो नॉर्थ में आके आगे एशिया के साथ जैम हुआ टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, तो जब वो जैम हुआ एशिया के साथ तो उसकी क्रस्ट में ऐसे चेंजेस आए अर्थ क्रस्ट में कि हिमालय की फॉर्मेशन हुई। एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आज भी हिमालय की हाइट एवरी ईयर अबाउट 1 इंच बढ़ रही है, क्योंकि वो जो पुश है, वो जो थ्रस्ट है, वो अभी भी जारी है। अभी भी इंडिया अपने आप को थ्रस्ट कर रहा है टूवर्ड्स एशिया, तो जिसकी वजह से हिमालय की हाइट हर साल बढ़ती है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी पहले इंडिया के साथ ही अंटार्कटिका का पार्ट था, और ये ड्रिफ्ट होके नॉर्थ अमेरिका के साथ जाकर जैम हो गया, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सरकमपोलर करंट। और जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ जाकर जुड़ा तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रेक पैसेज ओपन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड सरकमपोलर करंट दौड़ने लगे, ऐसी ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से अंटार्कटिका फ्रिजिड इज़ टोटली फ्रोज़न, डेसोलेट, अकेला और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे रह गया। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just to the circulatory and metabolic functions but also for the imagination. She is talking about herself. Teshani Doshi कहती हैं, since she is a South Indian और South Indian sun को worshipping होते हैं, it can be understood in two different types. Sun worshipping is the one who worships the sun, और साउथ इंडियंस यूजुअली सन को वर्शिप करते हैं। और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सन वर्शिपिंग ये भी हो सकता है कि सन की रेज़ वहाँ बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जिस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ गर्मी देखी हो, उसके लिए 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पर बिताना जहाँ पर अर्थ की टोटल आइस वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 90% स्टोर है, दैट इज़ अंटार्कटिका, ये एक चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है। ना सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए आपकी बॉडी विच इज़ हैबिचुअल टू वार्म क्लाइमेट वो एकदम से इतनी ठंडी जगह पे चली जाती है, तो ना सिर्फ आपके सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रॉब्लम होगी, बल्कि इमेजिनेशन के लिए भी कितना डिफरेंट है कि आपने कभी अपनी लाइफ में आइस अगर देखी भी होगी तो 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हर तरफ आइस ही आइस है और कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल विच इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप एक पिंग पोंग बॉल के अंदर फंस गए हैं एंड यू कैन नॉट मूव एनीवेयर। आप जहाँ भी जाओगे आप सिर्फ उस बॉल को ही टच करोगे, उस बॉल से बाहर जब तक आप नहीं आते। तो ये अंटार्कटिका के अंदर जाना भी पिंग पोंग बॉल के अंदर ट्रैप होने जैसा है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है यहाँ पर, ना तो कोई ट्री, ना बिलबोर्ड्स आर बोर्ड्स फॉर एडवर्टीजमेंट, ना ही कोई बिल्डिंग्स, किसी तरह का कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है जो ये शो करे कि कभी ह्यूमन्स यहाँ एग्जिस्ट करते थे या कर सकते हैं। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ आकर ना तो आपको कोई टाइम का पर्सपेक्टिव रहता है, ना ही अर्थ पे आप हैं ऐसा कुछ आपको लगेगा कि आप किस आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं कहाँ चले गए हैं, यू डोंट नो। टाइम भी क्या है क्यों नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है अर्थ पर जहाँ 6 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली पूरे 24 आवर्स डे रहता है, डे लाइट रहती है, सन की रोशनी रहती है, तो रात होती ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसे आते हैं जब पूरे 24 आवर्स तक अंधेरा रहता है, रात रहती है, तब सन निकलता ही नहीं है ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। तो इस लोकेशन की वजह से अंटार्कटिका ऐसा है, तो आपको वहाँ पे टाइम का कोई सेंस नहीं रहता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। विजुअल स्केल की बात की जाए कि आपको दिखेगा क्या यहाँ पर, तो वो माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होने वाले क्रीचर से लेकर के माइटी, बहुत पावरफुल तक भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोप का अगर एग्जांपल लिया जाए तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो होंगे वो मिजेस हैं और माइटी माइट्स हैं, मिजेस एंड माइट्स हैं माइक्रोस्कोपिक, और माइटी हैं ब्लू व्हेल्स। तो मिजेस एंड माइट्स से लेकर के ब्लू व्हेल्स तक हर तरह का विजुअल स्केल एनिमल्स की फॉर्म में आपको यहाँ दिख सकता है।
ब्लू वेल्स और आइसबर्ग्स भी। आइसबर्ग इतनी बड़ी जितनी बड़ी कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि अंटार्कटिका की हिस्ट्री में जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग है वो बेल्जियम के साइज़ का था। तो कंट्री जितने बड़े आइसबर्ग्स। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। अभी जैसा मैंने बताया 24 आवर्स तक कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ्स ऐसा होता है कि डे लाइट रहती है, सूरज वहाँ डूबता ही नहीं है। सरियल विच सीम्स रियल बट दैट इज़ नॉट रियल, जो रियल दिखता हो ना। सरियल 24 आवर्स तक समर लाइट रहती है। एंड उबिक्विशियस साइलेंस, उबिक्विशियस ओमनी प्रेजेंट, फैला हुआ हर जगह साइलेंस फैला रहता है, क्योंकि साइलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ कोई ह्यूमन मार्कर ही नहीं है। ह्यूमंस ने ही तो ज़्यादा शोर मचाया है, इस अर्थ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, बट वहाँ उनका क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं है तो किसी तरह का डिसरप्शन भी नहीं है साइलेंस में, या किसी तरह की नॉइस भी नहीं है। ना तो कोई मशीनरी है, ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना वहाँ प्लेन्स फ्लाई करते हैं। तो देयर इज़ उबिक्विशियस साइलेंस प्रेवलेंट ओवर देयर। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच। एवलांच बर्फ़ का खिसकना, जब बर्फ़ खिसकती है तब वहाँ पर शोर होता है। या कैल्विंग आइस शीट, जब बर्फ़ टूटती है, बर्फ़ के पहाड़ टूटते हैं, तभी इस प्लेस की जो साइलेंस है दैट कॉन्सिक्रेट्स, वो भंग होता है। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड। ये एक ऐसा इमर्जन है, यहाँ आकर आप ऐसे डूब जाएंगे कि आप अपने आप को अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ को रिलेट करने लगेंगे। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो इस ह्यूमंस के लिए इस अर्थ पर उनका प्रोग्नोसिस इज़ द फ्यूचर प्रोडिक्शन, दैट इज़ नॉट गुड, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन इम्पैक्ट नाउ, कि ह्यूमंस जब इस धरती पर आए तो उनका क्या इम्पैक्ट है, उन्होंने क्या क्या डिस्टर्बेंसेस कॉज किए हैं इस अर्थ पर। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। हम एक तरफ बात कर रहे हैं 650 मिलियन ईयर्स की, और दूसरी तरफ ह्यूमंस को इस अर्थ पर आए हुए सिर्फ 12,000 ईयर्स हुए हैं। तो अगर हम इसको एक क्लॉक की फॉर्म में कंपेयर करें कि अगर मिनट हैंड का एक बार 12 से शुरू होकर दोबारा 12 तक आना, अगर वो 650 मिलियन ईयर्स हैं, तो उसके प्रपोर्शन में 12,000 ईयर्स सिर्फ कुछ सेकेंड्स हैं, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स हैं इस जियोलॉजिकल क्लॉक पर। और इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। हमने इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है अर्थ पर, एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। हमने नेचर के ऊपर अपनी डोमिनेंस तो जैसे एच करने का सोच रखा है कि हम उसे अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे पावरफुल हैं। उसके लिए हमने कई तरह के विलेजेस, टाउन, सिटीज़ और यहाँ तक कि मेगा सिटीज़ भी कंस्ट्रक्ट की हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बाकी स्पीसीज भी हैं इस अर्थ पर, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक रेस चल पड़ी है ह्यूमन पॉपुलेशन और बाकी स्पीसीज़ के बीच में। एंड वी ऑलवेज नो, अर्थ के रिगार्ड में ये कहा जाता है, नेचर के रिगार्ड में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो भी फिटेस्ट होगा, जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वही सर्वाइव करेगा, उसी को ही रिसोर्सेज मिल पाएंगे, और जो कमज़ोर होगा वो स्पीसीज़ एक एक करके एक्सटिंक्ट होती जाएंगी। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ CO2 अराउंड द वर्ल्ड। और अनमिटिगेटेड, मिटिगेट इज़ टू डिक्रीज, कम करना, अनमिटिगेटेड अनइंटरप्टेड, बिना कम किए जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और अलग अलग तरह की गैसेस हम बर्न कर रहे हैं, तो उससे CO2 का एक ब्लैंकेट क्रिएट हो गया है अराउंड द वर्ल्ड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो वी आर नॉट ओनली डिस्टर्बिंग द अदर स्पीसीज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, वी आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके अलावा हम एनवायरनमेंट को भी पल्यूट कर रहे हैं, तो हम हर जगह अपना इम्पैक्ट, अपनी डोमिनेंस शो करना चाह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। अगर हम अपने समय की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट में होने वाले क्लाइमेट चेंज, जिसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं
कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, अंटार्कटिका में भी क्या आइस शीट मेल्ट होने वाली हैं। नेक्स्ट, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टरप्टेड, गल्फ स्ट्रीम में जो ओशन करंट, समुद्र के करंट वेव्स दौड़ रही हैं, क्या वो भी डिस्टरप्ट हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ये दुनिया जिसे हम ऐसा जानते हैं जो हमारे सामने है, क्या ये उसका एंड होने वाला है। द आंसर्स आर डिफरेंट, इट मे बी और इट मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी, ईदर वे, लेकिन जो भी हो, चाहे एंड हो चाहे ना हो, अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और अगर हमें इस डिबेट में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है कुछ वर्थवाइल अचीव करना है, तो अंटार्कटिका एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। Not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि ह्यूमन पॉपुलेशन कभी अंटार्कटिका में एग्जिस्ट नहीं की। सेकंड ये कि इसकी आइस कोर्स में 500,000-year-old कार्बन रिकॉर्ड भी ट्रैप हैं, क्योंकि आइस प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो जो स्पीसीज़, जो भी कार्बन रिकॉर्ड्स, जो भी एक्सटिंक्ट हुई स्पीसीज़ हैं और भी कार्बन इम्प्रिंट्स जितने भी हैं, वो सारे इसकी आइस कोर में एज इट इज़ एग्जैक्ट हैं। तो अगर हमें अर्थ के पास्ट को स्टडी करना है, एग्ज़ामिन करना है, तो हम अंटार्कटिका की आइस कोर्स में जाकर कर सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट के बारे में भी पता चलेगा, हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हैं और फिर हम अपने फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ह्यूमंस का इस अर्थ पर फ्यूचर क्या होने वाला है। सो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ पर जाकर हमें अर्थ के बारे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंडर तिशानी दोशी अंटार्कटिका में गई थी, इसका नेम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इसमें शोकलेस्की पर बैठाकर उन सबको ले जाया गया अंटार्कटिका। इट एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट। इस प्रोग्राम के अंडर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, उन्हें एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ अंटार्कटिका में ले जाया गया और उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई जिससे उनकी इस प्लैनेट अर्थ की अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फॉस्टर हो। फॉस्टर इज़ इंक्रीज़, बढ़े। वो अपने जब प्लैनेट के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लैनेट जो हमें मालूम है जहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल है, जहाँ पर ज़िंदगी है, जीवन है। तो इसीलिए हमें अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करना और उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट हैव अनदर अर्थ, एक ही अर्थ है हमारे पास, तो इसको प्रिजर्व करना, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर अबाउट 6 years नाउ। इस प्रोग्राम को शुरू हुए 6 years हो चुके हैं। इट्स हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। इसको जिसने बिगिन किया उस पर्सन का नाम है, वो कनाडा के रहने वाले जॉफ ग्रीन हैं, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजीली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ एक फॉर्म्स हैं, कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म्स हैं जो टूरिज़्म के लिए अंटार्कटिका में लेकर जाती हैं, लेकिन ये हर किसी के बस का नहीं है अफोर्ड करना। तो वो अब तक जॉफ ग्रीन सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज़ को, रिच और रिटायर्ड क्यूरियोसिटी सीकर्स, जो क्यूरियोसिटी में वहाँ जाते थे कि अंटार्कटिका में जाना कैसा लग सकता है, उनको ले जाके थक गए थे। बिकॉज दीज आर द पीपल जो अंटार्कटिका को अगर देखकर भी आते हैं तो दे कैन गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। वो वापस आकर एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में जब फ्यूचर जनरेशन के पॉलिसी मेकर्स को इंक्लूड करने का सोचा गया, ऐसे स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल में हैं लेकिन फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देने के बारे में सोचा गया, एक ऐसी एज में, क्योंकि उनकी एज ऐसी है व्हेन दे आर फार बेटर ऑफ देन अदर, बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं, जब उनकी लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है।
टीन एज में लर्निंग कैपेसिटी एब्जॉर्ब करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके ऊपर फिर एक्ट करना सबसे बेस्ट एज होती है। तो उस एज में उन्हें वहाँ ले जाया गया ताकि वो अपने प्लानट अर्थ के बारे में और ज़्यादा समझ सकें और वापस आकर उस पर एक्ट भी कर सकें। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का कारण भी यही था कि आप साउथ पोल के इतना करीब जाएं और उससे अनअफेक्टेड वापस आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अपने घर में अपने ड्राइंग रूम के कम्फर्ट में बैठकर मेल्टिंग आइस कैप्स के बारे में बात करना कि अरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए, लेकिन आप उस ड्राइंग रूम के कंफर्ट में बैठे हैं एसी चलाकर। एसी इज़ अनदर एग्जांपल जो ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से CO2 का ब्लैंकेट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप ऐसी जगह पे बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, जब आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, बर्फ़ पीछे खिसकती जा रही है, मतलब उसका अमाउंट कम हो रहा है, आइस शेल्फ्स कोलैप्स हो रही हैं, तो आप एक्चुअली में रियलाइज़ करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है ये सिर्फ डिस्कशन के लिए टॉपिक नहीं है, इट्स रियल। Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton. अंटार्कटिका में क्योंकि इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है फ्लोरा एंड फौना की, बायोडाइवर्सिटी की बहुत कमी है, तो ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ जाकर आप स्टडी कर सकते हैं एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उन सबको आप स्टडी कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो ऑथर ने लिया है हमें ये समझाने के लिए कि एनवायरनमेंट पर छोटी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है, वो एग्ज़ाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सी, ओशन के बिल्कुल सर्फेस पर मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ एल्गी। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये सी सरफेस पर ग्रास होती है सी के लेवल पर, और लेकिन इसका काम है नरिशमेंट एंड सस्टेनिंग द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन। पूरे सदर्न ओशन में जितनी भी स्पीसीज मिलती हैं फ़िश की, ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि जो छोटी फ़िश हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती हैं और छोटी फ़िश को बड़ी फ़िश खाती हैं। तो अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को इस पूरी फूड चेन से रिमूव कर दें तो छोटी फ़िश मर जाएंगी, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब वो मर जाएंगी तो बड़ी फ़िश का, वेल्स का भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. लैंड पर तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जो सी लेवल पर मिलते हैं, सी के बेस पर मिलते हैं, ये भी सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको कार्बन के साथ एसिमिलेट करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। बट साइंटिस्ट हैव अ वार्निंग फॉर अस, दे वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर में जो सबसे बड़ा होल जो ऑब्जर्व किया गया है दैट इज़ ओवर अंटार्कटिका। तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ओजोन लेयर का होल और बढ़ता है या वो लेयर डिप्लीट होती है तो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होंगी, और जब फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ इफेक्ट होंगी इट विल इन टर्न अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल। समुद्र में पाए जाने वाले, सदर्न ओशन में पाए जाने वाले सारे एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट होगी, बर्ड्स की लाइफ अफेक्ट होगी, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल विल बी अफेक्टेड। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. Phytoplankton के parable में एक great metaphor है। Metaphor we all know it's a literary device. Existence का एक metaphor है, comparison है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़ी चीज़ें अपने आप जगह पर रहती हैं। एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन का है कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी फ़िश अपने आप अपना ध्यान रख लेंगी और इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा।
A Walk on the Ocean, that is the last part of this chapter. ऑथर का तिशानी दोशी का जो अंटार्कटिक का एक्सपीरियंस है, इट वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे विच वर लाइफ चेंजिंग, जिनको शायद आप अर्थ के किसी और हिस्से में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट था वो अंटार्कटिक सर्कल के 65.5 डिग्री साउथ पोजीशन पर हुआ. The Shokaleski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Shokaleski अपने आप को फंसा लिया था वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में, जो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में थी. इन दोनों के बीच में फंस गया था शोकलेस्की, तो अब वो आगे नहीं जा पा रहा है. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. तो कैप्टन ने डिसाइड किया आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो अब वो वापस नॉर्थ में मुड़ेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो उन्हें टर्न अराउंड करना पड़ेगा. बट बिफोर वी डिड, उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया गया. इन सभी स्टूडेंट से कहा गया दैट दे हैव टू क्लाइम डाउन ऑन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. जो आइस शीट थी, साथ में आइसबर्ग थी, उसके ऊपर उन्हें उतारा गया और उन्हें कहा गया कि वो ओशन के ऊपर वॉक कर सकते हैं. तो जब वो एक आइसबर्ग के ऊपर खड़े थे, दे वर 52 इन नंबर, पूरे 52 के 52 लोग उस आइसबर्ग के ऊपर खड़े हैं. किटेड आउट इन द गोटेक्स एंड ग्लेयर्स. गोटेक्स वो उनके कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, जो ऐसी ठंडी जगहों पर पहने जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द आइस, फ्रॉम द स्नो. ग्लेयर्स उन्होंने पहने हुए थे, चश्मे, क्योंकि जब सन रेज आइस के ऊपर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके आँखों को बिल्कुल ब्लाइंड करती हैं, तो ग्लेयर्स पहनने ज़रूरी होते हैं. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, वो बिल्कुल फैली हुई वाइट स्नो के ऊपर चल रहे हैं. दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. और ऐसे लग रहा था कि जहाँ भी जाओ हर जगह बस पैरों के नीचे आइस ही होगी फॉर एवर तक. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. उनके पैरों के नीचे ये जो आइसबर्ग था, इट वॉज अबाउट 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक था. और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. ओशन वाटर था, सॉल्टी वाटर, लेकिन लिविंग और ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर में लिविंग स्पीसीज ब्रीद कर रही थी. इन द पेरीफेरी, crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. आसपास के पेरीफेरी में सील्स भी थी. देवर क्रैब ईटर, क्रैब खाने वाली सील्स. यू कैन ऑब्जर्व देम इन दिस पिक्चर हियर. देवर सनिंग देमसेल्फ. जब थोड़ी धूप निकली तो वो अपने आप को धूप सेकने के लिए बाहर आ गई थी. और बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी दुनिया में स्ट्रे डॉग्स बैनियन ट्री के नीचे शेड में बैठते हैं धूप से बचने के लिए. तो कैसे को रिलेशन है? इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. हर चीज़ कनेक्ट होती है. अंटार्कटिका में सील्स बाहर आई हैं अपने आप को धूप लेने के लिए, सनिंग के लिए. वहीं जिन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ स्ट्रे डॉग्स बैनियन ट्री के नीचे बैठ के अपने आप को धूप से प्रोटेक्ट करते हैं. 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर और 3 इकोस्फेयर्स, जिन्हें क्रॉस करके वो अंटार्कटिका पहुँचे थे. आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट. मैं अभी भी वंडर कर रही थी कि कितना बड़ा प्लानट है, लेकिन कैसे इसने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है. हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. फ्यूचर में अगर कभी ऐसा टाइम आया कि अंटार्कटिका वैसी ही गर्म जगह हो गई जैसी वो पहले कई मिलियन ईयर्स पहले हुआ करती थी, तो विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या ह्यूमंस तब भी होंगे इस धरती पर ये देखने के लिए? और वुड वी हैव गॉन द वे द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोज हैव गॉन. या फिर बाकी एक्सटिंक्ट हुई स्पीसीज की तरह हम भी जा चुके होंगे इस अर्थ से. हु इज़ टू से, कौन कह सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. But what a difference a day makes. उन टीनेजर्स के साथ जिनके साथ तिशानी दोशी यहाँ आई थी इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए, फाइनली उन सब का एक ही आइडियलिज्म था, दैट इज़ टू सेव द वर्ल्ड. कैसे भी हो एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस से अर्थ को बचाना है.
और जाते जाते ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है. शी सेज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स. हम सबको मालूम है मिलियन ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन क्या एक दिन भी कोई डिफरेंस ला सकता है? क्या ऐसा है कि एक दिन से भी कोई चेंज हो सकता है? एंड ऑब्वियसली द आंसर इज़ येस. एक एक दिन में जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक एक दिन से ही तो मिलियन ईयर्स बनते हैं, तो एक दिन में भी चेंज आता है, डिफरेंस आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ की हिस्ट्री के लिए, अर्थ के फ्यूचर के लिए. तो अगर हम अपने अर्थ के फ्यूचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इन एक एक दिन में ही हमें ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिनसे हम अर्थ के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें. So the chapter ends here. I hope you have enjoyed it.